Hello students, welcome back. This is part 3 in module 2, and probably in next part, that's part 4, we will conclude this rolling forming process. So in last class we have left at planetary meals. So planetary meal is a pair of some different small size planetary rolls, and one big heavy baking roll will be there. So you can see the diagram here. So this big size roll is known as baking roll, and these small size rollers, they are responsible for reduction of the thickness or for rolling process. So the big size roller work is to give the support to the small size rollers. And why so many small size rollers are there? Because each roller can contribute something in the reduction of the thickness. So as mentioned here, each planetary roll gives an almost constant reduction. Okay. Now what is camber? So this is very important term, that's camber. So let's assume that the thickness which we want of a sheet, cross section of that sheet must be a uniform rectangular cross section. But actually what happens, rollers are of size like this, but while as you apply the force in and especially in cold rolling, force will be too much, very high. So in that case, roller cross section will be something like this. So the thickness of the sheet that we will get, that thickness will be, or the cross section of the sheet will be like this. So to overcome this problem, we will give some initial draft to the rollers. So instead of keeping roller like this, initially we will design the rollers by giving some, I am unable to draw it correctly. Yeah. So by giving some draft. So here you can see we have given some draft. So this much draft, while in rolling process, this much draft will be removed, and finally the whatever the thickness we will get for the sheet, that will be a constant thickness. So you can see in these diagrams. So the use of cambered roll is to compensate for roll bending, and uncambered rolls give variation of the thickness. So you must remember this one. Now coming to the lubrication for rolling. So this is a thumb rule you remember. For hot rolling of non-ferrous metals, lubrication is required, and hot rolling of ferrous metals, lubrication is not required. Now that much is sufficient here. Now if you see the defects, sometimes in exams they will ask the defects also, what kind of defects can be there in rolling forming process. So there may be surface defect, wavy edges defects, alignment defects. So why these defects are there? What is the reason? So it may be like surface defects may be due to inclusion and impurities on the material surface. और ये हॉट रोलिंग में तो बहुत चांसेस रहते हैं कि सरफेस डिफेक्ट्स रहे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर गेटिंग पुअर सरफेस फिनिश. और वेवी एजेस क्यों आते हैं? क्योंकि रोल बेंडिंग होने के चांसेस रहते हैं इफ कैम्बर इज नॉट गिवन. और अनदर रीजन में भी
जो है आपने सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड नहीं करवाया है, ओनली 2 रोल मील सिस्टम है, तो 2 रोल के अंदर चांसेस रहते हैं रोल बेंडिंग के। सो इन केसेस में वेवी एजेस आ जाते हैं। सो लुक एट दिस डायग्राम, this is roller 1 and this is roller 2, and between these 2 rollers a strip of material that is having initial thickness h0 is being passed. Now after rolling process the thickness of the strip is or sheet is as final. So पहले इसका thickness h0 था, रोलर्स के बीच से पास होने के बाद में as final रह गया है। तो कितना रिड्यूस हो गया थिकनेस, दैट इज डेल्टा एच, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। सो ड्राफ्ट इक्वल टू एच नोट माइनस एच फाइनल। सो ये एच नोट माइनस एच फाइनल किसके बराबर होगा इस डायग्राम से यदि आप देखें तो देखो इधर ये एच फाइनल आपका और ये टोटल जो है ये एच नोट है। सो एच नोट में से एच फाइनल आप घटा करके माइनस करके उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वाला लेंथ आएगा ना ये। सो दिस लेंथ इज इक्वल टू डी बी, दिस वन डी बी। सो डी बी लेंथ जो है वो किसके बराबर होगा, यहां से देखो डी बी दैट इज एच नोट माइनस एच फाइनल डिवाइड बाई 2। नाउ डी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए बी जो कि टोटल रेडियस आर है, ए बी में से ए डी हम जो है माइनस कर देंगे। सो ए डी क्या है, आर का कोस कंपोनेंट, आर कोस एल्फा, दैट इज ए डी। सो वही मैंने किया है यहाँ पे, db equal to ab minus ad, r minus r cos alpha. So from here we will get delta h equal to d1 minus cos alpha. So this is one formula which is very important कि डेल्टा एच कितना होगा यदि रोलर्स का डायमीटर जो है वो d है और ड्राफ्ट एंगल जो है वो एल्फा है। ड्राफ्ट एंगल इसको बोलते हैं, वो एंगल जितना पेरिफेरी आपके रोलर का मटेरियल के कांटेक्ट में है। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर योर रोलर इज इन contact with the sheet. So it need not to be necessarily 1/4 of the circle or 1/4 of the periphery. ये डायग्राम में कुछ इस तरह का दिख रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ये कितना भी हो सकता है, ये अल्फा मतलब 5 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड स्ट्रेंथ। एनीवे, कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दिस वन, टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ द शीट। शीट का डिफॉर्मेशन जो आपने किया उसके लिए टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड कितना है, तो उसको देखो मैंने इस तरह से लिखा है, टॉर्क रिक्वायर्ड बाय 1 रोलर मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ टॉर्क रिक्वायर्ड बाय 1 रोलर, सो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। सो यहाँ पर आर क्या होगा, यहाँ पर आर होगा ये वाला, यहां से लेकर के इस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो आर होगा। देखो ये लाइन क्या होगी, वो लाइन भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली स्ट्रेस जो है आपके पेरिफेरी पे इस तरह से लग रही है, ये जो एरो मैंने बना रखे हैं, देखिए ये जो एरो मैंने बना रखे हैं इस तरह से जो है आपका स्ट्रेस लग रहा है, ये सिग्मा है, तो आपकी पेरिफेरी पे इस तरह से लग रहा है। तो मैं एक ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ना सी डी, ये लाइन में एक प्रोजेक्टेड लाइन मान रहा हूँ आपके इस पोर्शन का, सी बी जो एक आर्क है इसका प्रोजेक्टेड लाइन में मान रहा हूँ सी डी जो लाइन है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका स्ट्रेस जो टोटल स्ट्रेस जो है सी डी लाइन पे वर्टिकली ऐसे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो उसका बीच में कहीं सी जी में यहाँ मान करके यहाँ मैंने एक लाइन दिखाया है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द स्ट्रेस सिग्मा। तो वही मैंने लिखा सिग्मा, देखिए आप यहाँ पे सिग्मा इनटू जिस प्लेन में सिग्मा लग रहा है वो एरिया ए, तो ये तो हो गया आपका फोर्स, और सिग्मा लाइन जो मैंने आपको दिखाई वो आपके सेंटर से कितनी दूर है, दैट इज आर, यानी ये जो सिग्मा है ये लाइन ए से कितना दूर है, दैट इज आर। सो वही मैंने लिखा, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू आर, दैट इज इक्वल टू फोर्स होता है आपका स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू आर। सो इस फॉर्मूला से आपको जो है ना टॉर्क निकाल लेना है, उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। नाउ कम टू हियर, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। सो सिग्मा विल बी गिवन टू यू फॉर ए मटीरियल, सिग्मा विल बी गिवन टू यू। ए जो है वो प्रोजेक्टेड एरिया आपको यहाँ पे लेना है, ए मीन्स ये लेंथ आपका सी डी जो लेंथ है ये वाला लेंथ इनटू इसका इस तरफ विड्थ जो है, देखिए इस तरफ, सो ये विड्थ क्या है, बी है, विड्थ आपका किसका, शीट का, शीट जो है वो कितना चौड़ा है, शीट का विड्थ कितना है वो इनटू लेंथ सी डी, वो आपको प्रोजेक्टेड एरिया देगा।
तो वो लेंथ जो है, ये जो सी डी लेंथ जो है, ये मैंने लिखा है L इक्वल टू आर डेल्टा एच का स्क्वायर रूट। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो है लेंथ आपका। इस लेंथ को यदि आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, बी से, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। सो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। नाउ फॉर आर, आर क्या है, आर मतलब इस लाइन जो सिग्मा का लाइन है, यहां से लेकर के ए के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो आर आपका दिया जाता है 0.5 इंटू एल हॉट रोलिंग के लिए, 0.4 इंटू एल कोल्ड रोलिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने आर निकाल लिया। अब हमारे पास सब डाटाज हैं, सिग्मा है, एरिया क्या है, एल इंटू बी है और आर है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया। हॉट रोलिंग के लिए देखो मैंने लिखा है सिग्मा इंटू एरिया दैट इज एल इंटू बी इंटू आर मीन्स 0.5 एल। यदि कोल्ड रोलिंग होता तो 0.4 एल लिखता। इस तरह से मैंने टी कैलकुलेट कर लिया। टोटल टॉर्क इसका दोगुना होता है, तो इस तरह से टोटल टॉर्क निकाल लिया। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ पर होता है वो है कि ड्राफ्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। सो ये दिया जाता है म्यू स्क्वायर आर से, जहां पे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द रोलर एंड द शीट, ठीक है। सो यहाँ से जो म्यू स्क्वायर आर की जो वैल्यू आएगी उतना डेल्टा एच मैक्सिमम हो सकता है। तो ये क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए आपका थिकनेस जो है आपको 10 mm से रिड्यूस करना है, बट म्यू स्क्वायर आर का वैल्यू 8 mm ही है। तो आप एक बार में तो रिड्यूस कर नहीं सकते 10 mm, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप 8 कर लीजिए, दूसरी बार आप 2 mm रिड्यूस कर लीजिए। सो इस तरह से नंबर ऑफ पासेज कैलकुलेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नाउ म्यू हम जानते हैं कि ये 10 अल्फा के बराबर होता है। सो यहाँ से भी यदि अल्फा दिया हुआ तो आप म्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन दोनों चीजों के ऊपर, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसमें रोलिंग में जो एक दो फॉर्मूले और रह गए वो, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो इसका मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर है उसमें हम लेंगे। एंड वो लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए। सो before that I would like to request you that kindly remember all these formulas, like what is delta H and what can be the maximum value of delta H and how to calculate torque. So this much you must remember coming to the next lecture, and next lecture is very very important for you. Okay, so see you in the next lecture. Have a good day. Goodbye.